Okay, good morning, students. And let's see the information of the lecture. This is October 12, Class 8, Subject English. Communicate with Cambridge, the name of the book we are studying. And this is unit number 3rd, and this is section number 2, and the lecture number 1 basically. And the unit 3rd name is Fear and Courage, where you are getting to study related to fear and courage. And this is section number B, the last class. When you get the name of the text, we are going to read the last class, which is very important. This information you got, students, this is like whenever you want to read the chapter, you'll have the date as well as the information related to the lecture, which will help you out to reread or re-watch the lecture. Right, everyone? So let's just begin the lecture. A warm-up is given. Warm-up means like which will make us a bit familiar about the text which we are going to read. If anyone has any problem, note it down in your notebook at the last. In the last 5 to 7 minutes, you all will get chance to have a cross questioning or the doubts clarification session. So let's see a warm up. What is given in the warm up? Sorry. This story is set in the French provenance of Alaska. Provenance means होता है अक्षत्र, a particular part of a state or a district. That's called provenance. Make sure everyone that you are doing this provenance basically means like a particular part of a state or a district. So now we are reading that this story is set in the French provenance of the state, जिसका एक particular part था, जिसकी हम story अभी read कर रहे हैं. It was 1870 to 71, and the Franco-Persian War fought between the French and the Persians. Persians means यहाँ पर जो है that's German. जर्मन. ये 1870 में जो है वॉर हुआ था फ्रेंच फ्रांस के और रशिया के बीच में, सॉरी जर्मन के बीच में. प्रशियन, जर्मन्स को प्रशियंस बोलते थे वो लोग. और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, had just ended with an immense German victory. Immense means बहुत ही ज्यादा विशाल जो है जीत हुई थी जर्मनी की. The state schools in France were taken over by the German authorities, and German became the medium of instruction. जर्मन ने जो है फ्रांस के ये दो जो स्टेट्स जो थे, अलास्क और लॉरेन, दो स्टेट्स उस समय जो है जर्मनी ने जीत लिए थे, विन कर लिए थे, तो उन्होंने वहां पर अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया. यानी कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, जर्मन अथॉरिटीज मीन्स जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स होते थे, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट. एज वी ऑल नो, we are facing in today's time because of this lockdown period, that we have to follow all the instructions. That means like all the instructions of the governments, either it's written or verbal or anything that was supposed to be done in the German language.
यानी कि जर्मन लैंग्वेज जो थी मीडियम बन चुकी थी, माध्यम बन चुकी थी इंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट चीजों को लेकर के। द फ्रेंच पीपल नेवर एक्सेप्टेड द जर्मन रूल, और जो फ्रांस के लोग थे वहां के, उन्होंने उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड कंटिन्यू टू लुक अपॉन देमसेल्व्स एज फ्रेंच, और उन्होंने अपने आप को जो है हमेशा एक फ्रेंच की तरह, यानी कि वो फ्रेंच पीपल है, फ्रांस के लोग हैं, अपने आप को इस तरह से डील आउट किया। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, कि भाई हमारे जो नेक्स्ट स्टडी है ये स्कूल को लेकर के है एक, कि लोगों ने जो है उसको नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक लाइक प्रोविडेंस आई टोल्ड यू। अब उसके बाद वार्म अप के बाद जो है ना एक स्मॉल सा क्वेश्चन आता है, इफ यू वर अ स्टूडेंट इन अ स्कूल इन अलास्क and were forced to learn a foreign language, how would you feel? So make sure students you will prepare the answer of this question. इट मीन्स कि आप जो है आपके कंट्री के अंदर, जैसे कि यू हैव गॉट द फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज इज आर हिंदी, इसके अलावा अगर आपको कोई फोर्स करता है, देर आर टू थिंग्स बेसिकली। वन, यू वांट टू लर्न द थिंग्स spontaneously with your will. Another way is someone is forcing you to learn something, means their language, like German, French, or like Polish. So many languages are there in the world. So यहाँ पर जो question है, if you were a student in a school in Alaska, कि भाई अगर Alaska में तुम student होते उस समय, or were forced to learn a foreign language. Foreign language means here German language. How would you feel? तुम्हें कैसा महसूस होता? So you all will answer this question in your notebook. Make sure this is you are going to note down. Let's go to the next. Now see, this is the text, actual text. That was the thing we were it's very important. Now you see, I was very late for school that morning and I was afraid of being scolded, especially as Monsieur Himmel had. Now you see, यहाँ तक देखते हैं, हमारा जो नरेटर है, द नरेटर ऑफ आवर टेक्स्ट, वो कहता है कि बड़ा डरा हुआ था, अफ्रेड था, क्योंकि लेट हो चुका था स्कूल में जाने के लिए। लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह की बात है। एंड आई वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भाई मुझे जो है टीचर जो है डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, right? Especially as monsieur. Monsieur means students, this is the French word. We will get maximum French word in the text. Simultaneously I'll keep explaining you. Monsieur means होता है मिस्टर, या फिर आप जिसको अपनी लैंग्वेज में सर बोलते हैं, right? Especially as Mr. Himmel had told us that he should examine us on participles. जो उनके one of the teachers थे, जो हमारे नरेटर है हेमल सर, उन्होंने उनको होमवर्क दिया हुआ था कि वो एग्जामिन मींस उनकी लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, चेक करेंगे कि पार्टिसिपल्स, ग्रामर के अंदर सबको पता है दैट यू हैव गॉट द पार्टिसिपल्स, राइट? व्हेन यू स्टडी द लैंग्वेज, suppose you are studying English, French, any language, you will get the participles there. Participles होते हैं ना, present participle, past participle और perfect participle, right? सो जो होमवर्क था, हमारा नरेटर कहता है कि ये होमवर्क हमें मिला हुआ था पार्टिसिपल के ऊपर, हमारे जो टीचर थे हमें चेक करने वाले थे, जस्टिफाई करने वाले थे, वेदर वी लर्नड और नॉट, वेदर वी वर्कड और नॉट, राइट? एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट देम। और नरेटर कहता है मुझे फर्स्ट थिंग का मतलब है पहला अक्षर की बात कर रहा है, पहले शब्द की बात कर रहा है, वो पहली कुछ भी जो पार्टिसिपल में चीज थी मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट देम, पार्टिसिपल्स के बारे में उनके पहली बात भी नहीं पता थी। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए वो कहता है आई थॉट ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल, और मैंने क्या सोचा कि भाई मैं स्कूल से जो है थोड़ी देर के लिए क्या करूं, दूर चला जाऊं, स्कूल में ना जाऊं, स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल, दूर रहूं, एंड वंडरिंग अबाउट द फील्ड्स, और खेतों में इधर उधर घूम करके इंजॉय करूं। दिस इज ऑल द नरेटर इज सेइंग कि भाई मैंने ये सारी बातें सोची। इट वाज सच अ वार्म डे,
वार्म लवली डे। और वो कहते हैं कि ये बड़ा ही अच्छा और गर्म दिन था, बिल्कुल अच्छे दिन थे उस समय। वो बताता है कि मुझे ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आई। As I passed the mayor's office, which was supposed to be near to the school, मेयर जो सिटी के एक मेयर होते हैं, उनके ऑफिस के पास से वो कहता है मैं गुजर रहा था, आई सो दैट देयर वर पीपल गैदर्ड अबाउट द बोर्ड ऑन विच नोटिस वर पोस्टेड। और वो कहता है कि नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं ऑफिस के बाहर जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट टाइम। इंफॉर्मेशन नेट पे नहीं होती थी, नोटिस पे लिख दी जाती थी। पीपल यूज टू कम देयर टू सी द declarations or the orders of the government or any message government wants to pass to the people. So लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे बोर्ड के पास, नोटिस के पास, कि वहां पर क्या मैसेज आया हुआ था। For 2 years, all our bad news had come from that board. Now you see what we find for the last 2 years, they were getting the bad news in their life, right? क्या क्या न्यूज होती थी वो बताता है। बैटल लॉस्ट, कि हम बैटल जो है, लड़ाई जो है, हार गए हैं। कंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि कंपलसरी एनरोलमेंट्स कर देना चीजों की, आर्मी के ऊपर, पीपल के ऊपर, आपको ये ही करना है। ऑर्डर्स फ्रॉम दी हेडक्वार्टर्स, और हेडक्वार्टर से कंपलसरी ऑर्डर्स आते थे, वो रीड आउट करने होते थे, आपको फॉलो करने होते थे। एंड आई थॉट, और वो कहता है कि मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन इट बी नाउ, और मैं कंटिन्यू बढ़ता रहा आगे, और मैंने सोचा आगे बढ़ते हुए, चलते हुए, बिना रुके, what can it be now, और अब ये क्या हो सकता है। basically this narrator is saying that कि भाई I didn't stop for that, I just only, and while just walking without stopping I thought what can it be now, कि ये क्या हो सकता है, right? Any bad news, he was just expecting. Let's see the next one. Now narrator is saying, this is continue further, students. I ran into the schoolyard all out of breath. रन मीन्स दौड़ करके जाना, कि मैं स्कूल यार्ड से होते हुए दौड़ करके आगे बढ़ा। आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स गैस्पिंग, सांस चढ़ जाना। यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ स्कूल देयर वाज अ ग्रेट अप्रोर, कि जब कहते हैं प्राय क्या होता था, यूजुअली जब भी स्कूल शुरू होता था, एट द बिगिनिंग, it was the starting time of the school, there was a great uproar. You all can feel uproar means होता है कि हल्ला गुल्ला होना, भीड़ होना, नॉइस होना थोड़ी सी, which could be heard in the street, और जिसको जो है गली में भी सुना जा सकता था। डेस्क्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो डेस्क्स होते थे स्टूडेंट्स के, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग की जो साउंड होती थी वो सुनी जा सकती थी। लेसन्स रिपीटेड अलाउड इन यूनिसन। इन यूनिसन मीन्स होता है स्टूडेंट्स टुगेदर, ऑल टुगेदर जिसको हम कहते हैं, एक ही समय में एक साथ बोलना, टीचर के पीछे बोलना, रिपीट करना चीजों को। सो लेसन्स जो रिपीट होते थे, जो चीजें पढ़ाई जाती थी, वो सारे के सारे जो हैं क्या करते थे, सुने जा सकते थे। आई काउंटेड ऑन I I counted on all these noise to reach my bench unnoticed. और वो कहता है मैं ये चीजें जस्टिफाई कर रहा था, चेक कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि भाई ये नॉइस जो है, इसको ध्यान में रखते हुए अननोटिस्ड, कि मुझे कोई नोटिस नहीं कर पाए। बट एज इट हैपेंड दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट। लेकिन उस दिन हुआ क्या, अननोटिस्ड वो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन हुआ क्या बेसिकली, एज बट एज इट हैपेंड, सब कुछ जो है शांत था, चुप था सब कुछ एकदम से, कोई नॉइस नहीं थी, कोई भी साउंड नहीं था वहां पर। लाइक अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है। हाउ, कि भाई इट्स अ हॉलीडे फॉर द चिल्ड्रन, फॉर स्टूडेंट्स, एंड द स्कूल इज क्लोज्ड फॉर द डे, दैट मीन्स देयर इज अ क्वाइटनेस, नो साउंड इज देयर, संडे मॉर्निंग की तरह। Though the open window, I saw my comrades already in places. Comrades means like the companions, people basically, जो साथी थे उसके, फ्रेंड्स जो थे। अब वो कहता है कि मैंने विंडो से देखा और मेरे जितने साथी संगी थे, वो सारे के सारे अपनी अपनी बेंचों पर, जगहों पर बैठे हुए थे। एंड मॉन्सू, मॉन्सू मीन्स मिस्टर जो थे, हेमल, जो उनके टीचर थे,
walking back and forth with the terrible iron ruler under his arm. और मिस्टर हेमल जो टीचर थे वो क्या कर रहे थे, वो जो है कभी आगे कभी पीछे, विद अ टेरिबल आयरन रूलर, जो स्टिक उनके पास होती थी, रूलर मीन्स स्टिक होता है स्टूडेंट्स, अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म के अंदर उसने जो है उसको रखा हुआ था और वो आगे पीछे चल रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर and enter in the midst of that perfect silence. मुझे दरवाजा खोलना था. I was supposed to open the door and get in. कि भाई मुझे अंदर भी जाना था. In the midst of that perfect silence. कि भाई वो इतना perfect, इतना सही जो साइलेंस था उस समय, वहां पर शांत माहौल था, उसके बीच से, midst of the perfect silence के बीच से होकर के मुझे जो है अंदर जाना था. Filled with both shame and fear. और मैं जो है वो कहता है कि शर्म के मारे जो है झुका हुआ था, देख रहा था. फिल्ड विद शेम, शर्म एंड फियर, डर भी था और शर्म भी थी. बट मॉन्सूर हेमल, जो मिस्टर हेमल थे, जो सर थे, who looked at me with no sign of anger, उन्होंने मेरी तरफ देखा बिना किसी गुस्से के. कोई गुस्सा उन्होंने वहां पर नहीं दिखाया, बिना किसी गुस्से के जो है उसने उन्होंने मेरी तरफ देखा. This is all about the narrator is telling us about the class scenario. What was the scenario at that day and during that particular time? That means he was expecting that Mr. Hamill would be angry with him, but no. उसने बड़े देखा कि भाई कोई एंग्री का साइन नहीं था. एंड सैड वेरी जेंटली, बड़े भद्र तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसे कहा, गो एट वंस टू योर सीट, कि आप जो है तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाइए. माई लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स द नेम ऑफ द narrator in this text, right? We were going to begin without you. हम जो हैं तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे. We were going to begin, जो स्टडी है, जो लर्निंग है, हम तुम्हारे बिना इसको शुरू करने वाले थे. Without you. I stepped over the bench and sat down at once at my desk. और वो कहता है मैं जल्दी से, तेजी से गया एकदम बेंच से पास और जाकर के वहां पर आराम से बैठ गया. At my desk. Not until then, जब तक नहीं, when I had partly recovered from my fright. Not until then, तब तक वो कहता है when I had partly recovered. Partly means कुछ part of this जो shame feel कर रहा था और डर रहा था, उससे वो recover कर जाता है. From my fright, डर से. Sorry students. Did I notice that our teacher had on his head handsome blue coat? और वो कहता है कि मैंने थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा नोटिस किया कि भाई मेरे जो टीचर थे उन्होंने अपना एक सुंदर ब्लू कोट पहना हुआ है. हिज फ्लेटेड, फ्लेटेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्टिफ फॉर्मल कॉलर विद फोल्ड्स. सभी के पास बुक्स होंगी. जो टीचर है खड़ा हुआ है, उनकी जो ड्रेस है, जो ड्रेस का कॉलर है, वो कॉलर आप देखेंगे, दैट्स कॉल्ड प्लेटेड रफ. रफ, जो कॉलर की वो बात कर रहा है, और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, राइट एवरीवन. एंड द ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड ब्रीचेस, और ब्लैक, उसने एम्ब्रॉयडर्ड ब्रीचेस, ब्रीचेस मीन्स होता है, यू कैन सी इन द डाउन, फिटेड फॉर्मल शॉर्ट ट्राउजर्स फास्टेंड बिलो द नी. घुटनों के नीचे आप शूज देख सकते हो, कितने घुटनों से नीचे जो आए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द ब्रीचेस. ब्लैक उसने ये पहने हुए थे, राइट, which he wore on days of inspection or of distribution of prizes. और जो ये ड्रेस मिस्टर हेमल ने पहनी हुई थी, ये ड्रेस नेचुरली जो है वो या इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे, या फिर जब बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज के समय पर जो है पहनते थे. मोरओवर, इसके अलावा वो कहता है देयर वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और वहां पर वो क्या देखता है कि इसके अलावा वहां पर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें चल रही थी. समथिंग सोलमन, सोलमन मीन्स शांत माहौल होना, बिल्कुल एकदम ऐसे वो कहता है. अबाउट द होल क्लास, अब वो करता है क्या है,
व्हाट ही लुक्स एट, कि भाई वो देखता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर चल रहा था. सोलमन मीन्स शांत गंभीर, बिल्कुल कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि इट वाज ऑल अबाउट वेरी वेरी what is given here like extraordinary. गंभीर कुछ विषय था पूरी क्लास में, अबाउट द होल क्लास, कि कुछ समथिंग डिफरेंट होने वाला था. बट what surprised me most was to see at the back of the room. लेकिन मुझे किस चीज ने सरप्राइज किया कि क्लास के पीछे कौन बैठा हुआ था, ऑन द बेंचेस विच वर यूजुअली एम्प्टी, जो कि प्राय खाली रहा करते थे, खाली बेंचेस होते थे, लेकिन अब उन पे कोई बैठा हुआ था. सम मैन, कुछ आदमी थे, फ्रॉम द विलेज सिटिंग, जो वहां पर जो बैठे हुए थे, कुछ गांव के लोग आए हुए थे, एज साइलेंट एज वी वर, और वो भी उतने ही चुप थे, ऐसे ही चुप थे जैसे कि हम सब. ओल्ड हाउसर with his three cornered hat. Now you can see in the picture also, old houser means पुराने वर्कर्स जो थे सारे के सारे कॉर्नर में बैठे हुए थे. कौन कौन थे? एक्स मेयर, सिटी का जो एक्स मेयर था वो बैठा हुआ था. द एक्स पोस्टमैन, पोस्टमैन जो था एक्स, एंड अदर्स, और दूसरे बिसाइड्स, उसके अलावा कुछ और भी वहां पर बैठे हुए थे. दे ऑल सीम्ड डिप्रेस्ड, और सारे के सारे बड़े जो है डिप्रेस लग रहे थे, नहीं सही महसूस हो रहा था. दे ऑल वर डिप्रेस्ड मीन्स not that much comfortable as much usual. And Hauser had brought an old spelling book, और वो जो है अपने साथ पुरानी स्पेलिंग बुक्स लेकर के आए हुए थे with not. And now you see students, the people were there. They were having their books. Old people also came there in the school with the students. This was really a surprising moment. And the people with the children, basically बच्चों के साथ वो जो है चीजें सीखना चाह रहे थे. they were planning to learn something, और वो इसको लेकर के बड़ा सरप्राइज था. और with not age which he held wide open in his knee, with his great spectacles askew. Askew means होता है स्टूडेंट्स नॉट स्ट्रेट, एट एन एंगल, जिसको आप तिरछा बोल सकते हो. हिंदी में अगर हम इसको देखें कि उसको तिरछा बोलते हैं. एंड विद नॉड मीन्स एजेस मीन्स बड़ी तेज, जो उसकी धार थी मीन्स जो पेज थे बड़े कठोर टाइप के थे. एज जो थी उनकी थोड़ी मीन्स जैसे हमारे दांत होते हैं ना, नॉट दांत जो होते हैं उनकी जो एज होती है, दैट्स लाइक दैट, उसके जो पेजेस थे. और खुली हुई थी वो बुक सारी की सारी, और घुटनों पे उन्होंने रख रखी थी ऑन हिज नी. उकड़ू बैठ करके हम रख लेते हैं बेंच के ऊपर. एंड Monsieur Hamel then mounted his platform. Monsieur means वही सर हैमल जो थे, मिस्टर हैमल जो थे, then mounted his platform, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, and said to us, और कहते हैं हमें, my children, this is the last time that I shall teach you. और वो कहते हैं कि भाई मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अनाउंस करते हुए कहते हैं कि भाई आज जो है आखिरी बार मैं जो है आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ, टीच यू. ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन टू, और वो बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर्स आ चुके हैं. किस चीज को लेकर के ऑर्डर्स आ चुके हैं? दिस इज द पिक्चर यू ऑल कैन सी, कि भाई ये जो पिक्चर में यू कैन सी द नरेटर इज स्टैंडिंग एट द गेट, मिस्टर हैमल इज स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ द क्लास, blue coat, the collars and breeches you can see in the picture clearly, and the old housers, the people from the village, they were sitting there. वो वहां पर सारे के सारे बैठे हुए हैं. Though I find that you all must have the books with you, even though it is shown in the live lecture also, which can help you to understand the things in a proper way. Even though if you feel there is any problem with you, you'll be given a doubt session where you'll be able to ask related to the text if you find. So जो orders आए थे बर्लिन के लिए, orders जो थे, orders have come from Berlin to teach nothing but German in the schools of Alask and Lorraine.
यानी कि ऑर्डर्स आ चुके थे कि स्कूलों में आप जर्मन के अलावा, लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं सिखाओगे, आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखानी है वहां पर। ये ऑर्डर्स थे। द न्यू टीचर अराइव्स टुमारो, और जो नए टीचर आने थे वो कल आएंगे। दिस इज द लास्ट क्लास इन फ्रेंच, और ये फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट क्लास थी, आखिरी क्लास। सो आई बेग यू टू बी वेरी अटेंटिव। बेग मीन्स टू रिक्वेस्ट करना। जो रिक्वेस्ट वो कर रहे थे मिस्टर हैमल, वो कहते हैं कि भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ फ्रेंच फॉर यू ऑल। आह आह द विलियंस, विलियंस मीन्स यहाँ पर कहता है कुछ भी गलत होना। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हैविंग डन समथिंग, और कुछ होना गलत उनके साथ। दैट वॉज वॉट दे हैड पोस्टेड एट द मेयर्स ऑफिस। अब नरेटर जो है हमारा उसको रिकॉल करता है पास्ट मोमेंट को, दैट पीपल गैदर्ड एट मेयर्स ऑफिस आउटसाइड टू रीड द नोटिस। सो अब वो उसको ध्यान आता है कि नोटिस के ऊपर तो ये सब लिखा हुआ था, माई लास्ट क्लास इन फ्रेंच। और नरेटर हमारा कहता है कि भाई मेरी आखिरी क्लास जो फ्रेंच में थी, एंड आई बियरली न्यू हाउ टू राइट, और मुझे बियरली मीन्स नाम मात्र पता है कि भाई लिखते कैसे हैं। सो आई शुड नेवर लर्न, कि मुझे नहीं, मैंने नहीं सीखी है और नहीं सीखनी है। ये सारी बातें उसके मन में चलती रहती हैं, विच वी आर रीडिंग नाउ। How angry I was with myself because of the time I had wasted, the lesson I had missed. और मैं अपने आप को लेकर के कितना गुस्से में था, अपने आप को लेकर के भी मैंने कितना समय जो है वेस्ट कर दिया है। आई हैड वेस्टेड द लेसन आई हैड मिस्ड, इन लेसन्स को मैंने जो है मिस कर दिया है। माई बुक्स, which only a moment before I thought so tiresome. थोड़ी देर पहले, थोड़े समय पहले जिनको मैं समझता था कि बड़ी थका देने वाली बुक्स हैं, सो हैवी टू कैरी, कितनी भारी हैं। वो सोच रहा है ये सारी बातें बैठे बैठे। माई ग्रामर, माई सेक्रेड हिस्ट्री, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, सीम्ड टू मी नाउ लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। पहले ये मुझे जो है बोझ लगती थी, टायरसम लगती थी, थका देने वाली, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पुरानी दोस्त है। फ्रॉम whom आई शुड बी टेरिबली ग्रीव्ड टू पार्ट, मीन्स अब मैं जो है बड़े दुख के साथ इनसे अलग होने वाला हूँ। ग्रीव टू पार्ट मीन्स अलग होना। एंड इट वॉज द सेम अबाउट मॉन्सू हेमल, और जो चीज सिचुएशन मेरे साथ थी वो सेम सिचुएशन मिस्टर हेमल के साथ भी थी, जो उनके टीचर थे। द थॉट दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जो विचार था कि वो हमसे दूर जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि भाई मैं अब उसको, उनको जो है कभी भी आगे नहीं मिल पाऊंगा। सी हिम अगेन, हम कभी भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। मेड मी फॉरगेट द पनिशमेंट्स, और मैं जो है वो सारी पनिशमेंट्स भूल गया जो मेरे टीचर, जो मिस्टर हैमल जो है मुझे पनिशमेंट देते थे। एंड ब्लोज विद द रूलर, एंड ब्लोज विद द रूलर, और जो मुझे स्टिक के साथ पीटते थे, ब्लोज विद द रूलर पीटते थे। पुअर मैन, अब उनके बारे में सोचने के, बेचारा जो था आदमी था। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दैट लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और ये उसके सम्मान में था कि भाई हमारी लास्ट क्लास थी, और जो संडे के क्लॉथ्स, जो फंक्शन के क्लॉथ्स होते थे वो उन्होंने उस दिन पहने थे। ये उसके सम्मान में था कि लास्ट लेक्चर था। And I understood now why those old people from the village were sitting at the end of the room. और मुझे अब ये समझ आया, I understood now, कि भाई वो जो बुजुर्ग पीपल हैं, जो हाउसर्स हैं, वो गांव से क्यों आए हुए हैं, क्यों पीछे बैठे हुए हैं। अब मुझे जो है सारी बात समझ आ गई थी। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब वो कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ चुका था कि ये सब क्यों हो रहा था। इट It seemed to mean that they regretted not having come often to the school.
और ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा पछता रहे थे। रिग्रेटेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू रिपेंट। टू रिग्रेट मीन्स पछतावा करना किसी भी बात को लेकर के, रिग्रेट करना, राइट, कि पछताना कि भाई वो स्कूल क्यों नहीं आए प्राय और उन्होंने स्टडी क्यों नहीं की। इट वॉज ऑल्सो अ वे ऑफ थिंकिंग आवर टीचर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और ये एक दूसरे तरीके से सोचा जाए तो हमारे टीचर के लिए भी था, जो पिछले 40 सालों से अपनी फेथफुल, सच्चाई पूर्ण जो अपनी सर्विस, जो नौकरी, जो काम था वो कर रहे थे, ऑफ पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स टू द फादरलैंड विच वाज वैनिशिंग। और उनको जो है रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए, सम्मान करने के लिए वो सब जो वहां पर आए हुए थे, जो कि अब हमारे वैनिशिंग मीन्स होता है लुप्त हो जाना, अब वो हमारे पास से जो है जा रहे हैं, मीन्स हम उनसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे, वैनिश हो रहे हैं हमारे पास से, गायब हो जाएंगे वो यहाँ से। जो कि अपनी फादरलैंड को उन्होंने 40 ईयर्स तक सर्व किया, उसके रिस्पेक्ट में जो है सभी के सभी वहां पर आए थे। So children, that's enough for today's lecture. Rest of the part of the lecture we'll study in the next lecture. Now, if any one of you wants to ask any question, I allow you to just raise your hand. After raising your hand, I'll ask you to come in and ask a question.